Now we've seen so far how to extract test cases from use case document or use case part of the document, the SRS document. Now we are going to have an example where we are using a microwave ovens embedded system, and we are going to analyze its use case diagrams, its use case description to arrive at test cases. The specification, it will give you all the main course of action and the alternate courses of action. Here's an example. I have an actor, I have the microwave oven and the use case, and then I have an external actor which is timer. Let's go through a brief description. यूज केस एनालिसिस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं. यूज केस डिस्क्राइब्स यूजर्स इंटरेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए माइक्रोवेव oven. Added value would scope microwave oven, primary actor cook, supporting actor timer, and precondition is the microwave oven is waiting to be used, that is it is plugged. Okay. The main course of action, I go through the steps. Cook opens the microwave oven door, puts food into the oven, and then closes the door. Cook specifies a cooking time. System displays entered cooking time to cook. Cook starts the system by pressing the start button. System cooks the food, continuously displays remaining time or the remaining cooking time. Timer indicates the specified cooking time that has been reached and notifies the system. System stops cooking and displays visual and audio signal indicating that cooking is complete. Cook opens the door, removes food and closes the door. System resets the display. Now these are the steps. ये नॉर्मल आपका जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन है, हमने ट्राई किया है एक ऐसी एग्जांपल लें जो कि तकरीबन हम सबको समझ में आए और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हो. इसके अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शंस, जैसे कि आपकी बाकी आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर आर्किटेक्चर और इस तरह के कोर्सेज में ये देखा होगा कि जो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन अल्टरनेट फ्लो एट 4 अल्टरनेट फ्लोज को देखते हैं हम. 1A, cook does not close the door before starting the system. अच्छा, system will not start. 4A, cook starts the system without placing food. This system will not start. 4B, cook enters a cooking time equal to 0. System will not start. Cook opens the door during cooking. System will stop cooking. ये 5A है. This means के we have gone from step number 1 to step number 5, and then from step number 5 I have a deviation in the flow. 5B, cook cancels cooking. अब देखिए हमने मेन एंड अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन लिख लिए. हमारे पास मेन कोर्स ऑफ एक्शन एक, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन 1 2 3 4 5 आ गए. वी हैव टू फिल इन, एक हमारे पास या हम एक्सेल शीट होगी या हमारा कोई टेस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम सिनेरियोज देखेंगे. देखिए एक सिनेरियो है बेसिक फ्लो, मेन कोर्स ऑफ एक्शन. ये देखिए ये मेरा मेन कोर्स ऑफ एक्शन आ गया. एक है जिसमें मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ बेसिक फ्लो से मेन कोर्स ऑफ एक्शन में, मगर मेरा इंटेंट है आई वांट टू टेस्ट इफ सिस्टम हैविंग दोज कंडीशंस मेट. फॉर एग्जांपल मेरी पहली कंडीशन थी कि कुक ने फूड नहीं रखा लेकिन स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया. अब व्हाट शुड हैपन? अब हमने ये चेक करना कि क्या जो हमने लिखा है या जो हमने स्पेसिफाई किया है क्या वही हो रहा है. इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम गोज इन मेन कोर्स ऑफ एक्शन, देन गोज टू अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन 1, देन गोज टू अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन 2. इफ इट इज परमिसिबल, it should happen and I should test. So I am creating scenarios. Now I have written my use case scenarios. I've extracted scenarios from use case diagram, and considering that use case diagram and use case description, I know what are the main course of action, what are the alternate courses of action, and what are the scenarios that I want to test. I want to test if main course of action is happening, and if I give inputs which are not appropriate, then if it is going into the
alternate course of action that I'm expecting it to go into. सो मेरे पास सिनेरियोज हो गए, एक सिनेरियो या मे बी एक से ज़्यादा सिनेरियोज फॉर मेन कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. मैंने अभी कहा मे बी एक से ज़्यादा सिनेरियोज. यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये भी हो सकता है कि हम एक मेन सिनेरियो को दो पॉसिबिलिटीज़ पे टेस्ट करें कि इस तरह की इनपुट हो तो क्या होगा, इस तरह की इनपुट हो तो क्या होगा, या अब हम ये चाह रहे हैं कि मेन कोर्स ऑफ एक्शन से मेरी इंटेंट है स्टार्ट में मेन कोर्स ऑफ एक्शन से करूं, लेकिन मैं अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन लेट्स से ए एंड बी दोनों को टेस्ट करता हो जाऊं. सो फॉर ईच यूज केस यूज केस आई एम जनरेटिंग full set of use case scenarios. For each scenario, I am identifying at least one test case and conditions that will make it execute. कंडीशन से मेरी क्या मुराद है, हमने अभी माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ली. देखिए पहली कंडीशन ये है, द सिस्टम माइक्रोवेव ओवन शुड बी प्लग्ड, इट शुड बी हैविंग electricity, it is plugged with the it is switched on, electricity is switched on. Let's say this is my pre-condition. अभी जो कंडीशन है फॉर एग्जांपल लॉग आउट के लिए यू मस्ट बी लॉग्ड इन, सो वो प्री कंडीशन होगी. फॉर ईच टेस्ट केस आइडेंटिफाई डेटा वैल्यूज विद विच वी टेस्ट. अब देखिए मेरे पास सिनेरियो तो आ गया, लेकिन वो क्या डेटा वैल्यूज होंगी या वो क्या सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा जो इस टेस्ट को एग्जीक्यूट कराएगा. दैट इज मेरा अब ये टेस्ट केस जनरेट हो गया. पहले मैंने सिनेरियो लिया, फिर मैंने कंडीशंस ली, अब टेस्ट केस के लिए डेटा वैल्यूज लिए. ओके, स्टेप 1, रीड यूज केस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई ईच कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड अल्टरनेट फ्लोज एंड क्रिएट सिनेरियो मैट्रिक्स. सिनेरियो मैट्रिक्स, अब मैं स्टेप 1 अब मैं इसको फिल इन करने जा रहा हूँ जी. देखिए मैंने क्या किया, मैंने यूज केस आईडी ली. अब चूंकि मेरे पास यूज केस ही एक है तो आप गौर कीजिए हर तरफ मेरी यूज केस आईडी 1 ही जा रही है. देन माय एस आईडी, दैट इज माय सिनेरियो आईडी. देखिए मुझे एक काइंड ऑफ ट्रेसेबिलिटी क्रिएट करनी है. आप देखिए आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट में अगर 15 यूज केसेस थे तो आई वांट टू हैव एटलीस्ट 1 to 15 कमिंग हियर, 1 then 2 then and then 15. For each one of those I want to have a kind of a traceability or a kind of a matrix which shows from 1 I have identified how many scenarios, 4 scenario, 5 scenario, 15 scenario, whatever. Then scenario description, ये करता क्या है, मैं क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ. सक्सेसफुल कुकिंग, डोर ओपन वाइल कुकिंग, नो फूड प्लेस्ड इन द कुकिंग इन द ओवन, डोर ओपन ड्यूरिंग कुकिंग एंड कुकिंग कैंसल्ड. अब मैंने from my use case I have identified 5 scenarios. From those 5 scenarios I am saying starting flow, मेरा फ्लो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा या कहाँ से मैं टेस्ट करना स्टार्ट करूँगा, कहाँ से मैं ये कहूँगा कि मेरा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. ईच केस, इस केस में हमने ईच केस में MCA मेन कोर्स ऑफ एक्शन को लिया है और पहले MCA को ही टेस्ट किया है, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब आप गौर कीजिए क्वेश्चन बनता है कि जी वाई स्टार्टिंग फ्लो, अगर हर दफ़ा MCA ही होना है तो लिखने की क्या ज़रूरत है. देखिए फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट कर रहा था लॉग इन में मैं वो केस टेस्ट कर रहा था कि जहां मैं 2 दफ़ा लॉग इन कर चुका हूं, मैं तीसरी दफ़ा लॉग इन करूंगा और सिस्टम मुझे लेट्स से 15 मिनट्स के लिए ब्लॉक कर देगा. अब मेरा स्टार्टिंग फ्लो MCA प्लस लेट्स से कि जो अल्टरनेट फ्लो है उसका नाम ACAX है और MCA प्लस ACAX स्टार्टिंग फ्लो में आएंगे और लेट से ACAY को मैं चेक कर रहा हूं तो ACAY मेरा टारगेट फ्लो होगा. देखिए अब हम क्या कर रहे हैं इफेक्टिवली, पहले हमने अपने स्टेप्स लिख लिए. स्टेप्स लिखने के बाद हमने क्या किया, अपना एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जिसमें हमने अपने कॉम्बिनेशंस ऑफ मेन एंड अल्टरनेट फ्लोज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने यूज़ केस आईडीज़ एनोटेट कर ली, सिनेरियोज़ को आइडेंटिफाई कर लिया या उनको आइडेंटिटीज़ दे दी. अब हम करने ये जा रहे हैं कि अब हम टेस्ट केसेस को लिखने जा रहे हैं. देखिए एनालाइजिंग सिनेरियो, रिव्यूइंग यूज़ केस टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, नाउ आइडेंटिफाई टेस्ट केसेस. अब
पहली बात जो हमने आइडेंटिफाई कर रखी है वो ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन टेस्ट केस पर सिनेरियो, एटलीस्ट वन टेस्ट केस। ईजी टेस्ट केस फॉर डोर ओपन, हमारा जो अपनी करंट रनिंग जो एग्जांपल चल रही है, टेस्ट केस फॉर डोर ओपन सिनेरियो, वी डेवलप टेस्ट सूट कंटेनिंग लेट्स से टेस्ट केस आईडी, सिनेरियो आईडी, इनपुट्स देयर कुड बी लेट्स से 15 इनपुट्स। हमने हर इनपुट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। देन प्री कंडीशंस, what are those conditions, what are those environment conditions that will let this particular use case happen or instantiate. Expected output, what I'm expecting. Okay, now this is another thing, post condition। देखिए मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि मैंने एक सिस्टम को किस प्री कंडीशन से लिया, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आई, और सिस्टम स्टेट आफ्टर माई यूजेज वो क्या थी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने डोर ओपन किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुकिंग रुक जाए, जबकि फ्यूज ब्लो अप कर गया। अब ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कुकिंग तो मेरी कैंसिल हुई है, लेकिन उसके बाद लेट से जो मोटर है उसकी ओवन की वो भी ब्लो अप कर गई, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैं पोस्ट कंडीशन में वही रखूंगा कि दिस सिस्टम इज इन आइडल स्टेट वेटिंग फॉर पोर्ट इनपुट। देन पास फेल क्राइटेरिया, पास कब होगा, ये टेस्ट केस पास कब होगा, ये टेस्ट केस फेल कब होगा। देखिए मैं ये चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जनाब मैं आई वांटेड टू डू लॉग इन, आई गेव वैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अब मेरी पास का क्राइटेरिया क्या होगा कि लॉग इन हैपेंड, लॉग इन सक्सेसफुल। फेल का क्राइटेरिया क्या होगा, लॉग इन अनसक्सेसफुल। अगर मैं कहता हूं जी लॉग इन जो है उसका मैं नेगेटिव यूज केस लिख रहा हूं विद नेगेटिव इंटेंट, अब ईदर यूजर नेम और पासवर्ड वुड बी इनवैलिड, लॉग इन अनसक्सेसफुल होगा। अब देखिए अगर लॉग इन अनसक्सेसफुल हो रहा है तो क्या अब ये यूज केस, ये टेस्ट फेल हुआ या पास हुआ। पास फेल में, अब फेल में आएगा कि लॉग इन हो गया और पास में आएगा कि लॉग इन नहीं हुआ। सो मैं दोबारा लिखता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लॉग इन सक्सेसफुल लॉगिन एंड अनसक्सेसफुल लॉगिन। इसका मैंने जनाब पास फेल बनाया, मैं इसको ऊपर से मिटा दूं, पास लॉगिन सक्सेसफुल, पास लॉगिन हो गया। लॉगिन का अगर ये टेस्ट केस फेल होगा तो क्या होगा, लॉगिन नहीं हुआ। इसी तरीके से लॉगिन अनसक्सेसफुल, अगर तो पास होगा तो लॉगिन नहीं होगा, अगर लॉगिन अनसक्सेसफुल का टेस्ट केस फेल हो गया तो लॉगिन हो जाएगा। आप इसको समझें कि सो दिस मींस पास फेल क्राइटेरिया मुझे देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ईच टेस्ट केस। स्टेप 3, आइडेंटिफाई डेटा। नाउ यहां तक मैंने क्या किया, अभी तक हमने इसे प्लान किया कि टेस्ट केस आइडेंटिफाई किया। अब मैंने वो डेटा जो कि इस एक्चुअल टेस्ट केस को करके देगा या इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए चाहिए होगा, मैं उसको फिल करूंगा या उसको आइडेंटिफाई करूंगा। ये एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास टेस्ट केस आईडी थी 1, मेरे पास सिनेरियो आईडी थी 1-1, मेरे पास पहली इनपुट थी फूड प्लेस्ड फॉर कुकिंग, मेरी दूसरी इनपुट थी टाइमर इनिशियलाइज्ड टू 1 मिनट, मेरी तीसरी इनपुट थी स्टार्ट कुकिंग बटन प्रेस्ड। देखिए क्योंकि ये ओवन की एग्जांपल है, हर घर में ओवन है और हर घर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनपुट्स इसकी 3 होंगी। मैंने इसीलिए इस एग्जांपल को चूज़ किया है कि बड़ी कॉमन एग्जांपल है और आप ये समझ पाएंगे कि अब मैं किस एरिया में हूँ। मैं सिस्टम टेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर एम्बेड हो चुका है इनटू द होल हार्डवेयर, मेरे पास टेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं है स्वाय व्हाट इज स्पेसिफाइड। उस स्पेसिफिकेशन से मैंने देखा कि यूज केस डायग्राम मिल गई, यूज केस डिस्क्रिप्शन मिल गई, तो दिस बिकेम द फ्यूल फॉर माई वर्किंग। अब देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट आई एम एक्सपेक्टिंग फूड इज कुक्ड, पोस्ट कंडीशन आई एम एक्सपेक्टिंग अलार्म इज ऑन, एंड पास फेल क्राइटेरिया, पास का क्या है जी, फूड कुक्ड अलार्म फॉर 15 सेकेंड। नाउ अगर ये नहीं होगा तो आपका टेस्ट केस फेल हो गया, अगर ये हो गया तो टेस्ट केस पास हो गया। अब देखिए, अब हमने एक टेस्ट केस के लिए हमने डेटा फिल इन किया,
ये आपके लिए असाइनमेंट है या आपके लिए आपके होम टाइम असाइनमेंट है कि आप बाकी के इसके आइडेंटिफाई करें, इनको लिखें और देखें। और आप बाद में आप ये भी नोटिस करेंगे कि यू विल फाइंड आउट, अगर आपके पास 5 सिनेरियो आपके बन रहे हैं तो टेस्ट केसेस में भी 5 से बढ़ जाएं, बट मिनिमम उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो 5 ही रहेगी। अब आप गौर करें, वी आइडेंटिफाई एडिशनल सिनेरियोज। ये भी केस हो सकता है कि मेरे पास एडिशनल यूजेज सिनेरियोज बन गए। फॉर एग्जांपल पावर फेलियर, एक सिनेरियो लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह है जी कि हाफ वे थ्रू फूड वॉज गेटिंग कुक्ड एंड पावर फेल्ड, इट फेल्ड फॉर हाफ अ मिनट, इट केम बैक। तो क्या सिस्टम को अपनी स्टेट याद रखनी चाहिए? इट शुड रिमेंबर इट स्टेट कि जी 13 सेकेंड की कुकिंग रह गई थी। शुड इट स्टार्ट फ्रॉम 13 सेकेंड्स ऑटोमेटिकली और इट शुड गो बैक टू 0? ये लिखा हुआ ही नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन, कुकिंग स्टार्टेड विद टू मच लोड, कुकिंग का तो लिखा हुआ है लेकिन उसकी कैपेसिटी थी ओवन की 10 लीटर्स और हमने रख दिया उसमें 20 लीटर्स। हमने एक ईंट रखी उसके अंदर और हमने उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। देन कुकिंग विद मेटल प्लेट इन द फूड, आपके पुराने जो ओवन थे उसमें अगर मेटल का कोई हिस्सा होता था तो इट यूज टू बी डेंजरस। अब हम चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अब आजकल के जो ब्रांड न्यू नए ओवन आ रहे हैं उसमें ये नहीं। आप क्या करने जा रहे हैं? डिफेक्टो स्टैंडर्ड देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया जी। वी फाइंड सिनेरियोज इंप्लीमेंटेड बट नॉट डिफाइंड, वी फाइंड सिनेरियोज डिफाइंड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर तो ये केस है जी कि डिफाइंड तो है बट इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये तो क्लासिकल केस है। टेस्टिंग, आपने सिनेरियो को टेस्ट किया, सिनेरियो ये वी फाउंड आउट कि ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये तो बिल्कुल केस वर्थ रिपोर्टिंग। सिनेरियो इम्प्लीमेंटेड बट नॉट डिफाइंड इज नॉट माई बेबी। ओके, वी रिपोर्ट अनोमलीज ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैच बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारा इंटरेस्ट देखिए, आप अगर पिछले ऑफिस में काम कर रहे थे तो आपने देखा कि इसमें ये सिनेरियो भी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है। तो अब आप जब रिपोर्ट करते हैं टेस्ट आउटपुट या टेस्ट रिजल्ट, जो कि शायद आपको मैं अभी अगले या इस एक आध लेक्चर में ये करवाने वाला हूँ, तो आप टेस्ट केस की सिवेरिटी लेवल कि ये जनाब आपका टेस्ट केस की सिवेरिटी क्या है, देन आप समटाइम्स एक बग रिपोर्ट कर रहे होते हैं या कभी इशू रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी डिटेल आगे आने वाली है। एंड नाउ वी एक्सट्रैक्ट टेस्ट केसेस फ्रॉम SRS रिटन इन प्लेन इंग्लिश। अब यहाँ तक तो हमने करके देखा कि SRS बड़ी वेल डिफाइंड वेल रिटन मेरे पास आई। अब मैं वो भी केसेस हैं जहाँ पे SRS ही प्लेन इंग्लिश में, ना ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, ना ये किसी किस्म की कोई बेहतर या आर्टिफैक्ट, कोई UML आर्टिफैक्ट है, प्लेन इंग्लिश में लिखी। तो इस केस में क्या करें, ये हम अगले लेक्चर में हैंडल करेंगे।